Hello everyone, this is paper first of BA part first, Foundations of Political Science, and in this video we will understand the presidential form of government, its meaning, features, merits and demerits. So, meaning of presidential government. According to Dr. Garner, presidential government is that system which the executive, including both the head of the state and his ministers, is constitutionally independent of the legislature in respect to the duration of his or their tenure and irresponsible to it for his or their political policies. In such a system, the chief of the state is not merely the nominal executive, but he is real executive and actually exercises the powers which the constitution and laws confer upon him. In this system, the president enjoys real powers of the government. He is not responsible to the legislature for his administration and policies. Next one is features. So let's see what are the features. First one is there is a separation of powers in the presidential government. In this system, the executive and legislature are separate from each other and they have equal status. And second one is the president is the head of the state as well as of the government. And next one is in the presidential government, the president enjoys real powers of the administration and he exercises all those powers which are given to him under the constitution and the law. And in the presidential government, there is no prime minister and the secretaries help the president in the administration and they are appointed by him on the basis of their abilities. Next one is in the presidential government, the president is not responsible to the legislature. The legislature cannot remove them through a vote of no confidence. And last one is the president is elected for a fixed tenure and accept impeachment for the violation of the constitution. He cannot be removed from his office before the expiry of his term. And at present, presidential government is seen in the United States of America mainly. Next one is merits and demerits of presidential form of government. And in our previous video we have talked about the merits and demerits of parliamentary form of government. So the merits of parliamentary form of the government are the demerits of presidential form of government, and the demerits of parliamentary form of government are the merits of presidential form of government. That's mean in exams we are just only to do the opposite of the parliamentary form of government. When we write about the presidential form of government, its merits and demerits. So the merits of presidential form of government are the demerits of parliamentary form of government, and demerits of presidential form of government are the merits of parliamentary form of government. आज हम लोग बात कर रहे हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति हैं, सरकार की वास्तविक शक्तियों का वो उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत जो नॉमिनल और नाममात्र वास्तविक कार्यपालिका एक ही होते हैं, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति हैं, संविधान भी सभी शक्तियां उनको देते हैं और वास्तव में भी वो उनका उपयोग करते हैं। और दूसरा कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने प्रशासन, अपनी नीतियों के लिए किसी भी प्रकार से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो जहां हमने संस्थात्मक व्यवस्था के अंतर्गत देखा था कि जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए किसी भी प्रकार से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है उसे हम कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और जहां पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है उसे हम लोग कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वह ये होता है कि जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है तो व्यवस्थापिका है वो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को अपने समय उसका जो कार्यकाल है उसके पूरे होने से पहले उसे अपने पद से हटा सकती है। लेकिन जनरली जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, इसलिए व्यवस्थापिका कार्यपालिका को अपने कार्यकाल से पहले नहीं हटा सकती है। इसके बाद में इसकी विशेषताएं आ जाता है। पहले आ जाती है कि इसके अंतर्गत जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है कि शक्तियां हैं वो विभाजित होनी चाहिए कार्यपालिका और न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत शक्तियों का जो पृथक्करण है वो पाया जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है कि इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं वो ही राज्य के प्रधान और सरकार के प्रधान दोनों होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं वह वास्तविक शक्तियों का उपयोग करते हैं। सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होती हैं, जो कि संविधान भी उन्हें देता है, वास्तव में भी वो उनका उपयोग करते हैं। और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री पद की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसके अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, इसीलिए व्यवस्थापिका है उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें अपने पद से नहीं हटा सकती है। और लास्ट वन आ जाता है कि इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए, एक निश्चित समय पीरियड के लिए उन्हें इलेक्ट किया जाता है। और जनरली एक जो महाभियोग की प्रक्रिया है, संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग के द्वारा जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसे छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से उसे अपने पद से समय से पहले नहीं हटाया जा सकता है, अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें नहीं हटाया जा सकता है। तो फीचर्स आ जाते हैं, पहला आ जाता है इसके अंतर्गत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है। दूसरा जाता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य के प्रधान और सरकार के प्रधान दोनों के रूप में कार्य करते हैं। वास्तविक सारी शक्तियां राष्ट्रपति रखते हैं, संविधान भी उन्हें देता है और वास्तव में भी उनका उपयोग करते हैं। कार्यपालिका होती है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। और जनरली यदि हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़ दें, जिस जो कि संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर चलाई जाती है, अन्य किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। इसके बाद में आ जाते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण और दोष आ जाते हैं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के जो गुण हैं वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के दोष हैं, और संस्थात्मक व्यवस्था के जो दोष हैं वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था के गुण हैं। इसका मतलब है एग्जाम में हमें उनका बिल्कुल अपोजिट कर देना है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। That's all for today from my side. Thank you very much.